Good morning, students. I'm your science teacher Swati, and today I will be discussing the chapter Atoms and Molecules. So, let's discuss the topic ions. Ions are what? Compounds containing metal and non metal elements contain charged particles called ions. An ion is a charged particle having positive or the negative charge, and a positively charged ion is called cation, and a negatively charged ion is called anion. फाइन. अब आयंस क्या है बेटा? आयंस बेसिकली एलिमेंट्स ही हैं आपके, मेटल और नॉन मेटल. अब इनके ऊपर अगर चार्ज है तो उन चार्ज पार्टिकल्स को हम आयंस बोलते हैं. अब ये आयन जो है आपका, जो चार्ज पार्टिकल है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है, इट इज़ हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, देन दैट इज नोन एज द cation. If it is having the negative charge, it is known as the anion. Fine. ANION. This is an ion. If it is positive, it is cation. If it is negative, it is anion. So anion is ANION. इसकी स्पेलिंग रहेगी ANION. It is an anion. Fine. सो अब इट इज़ द वैलेंसी. नेक्स्ट टॉपिक, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको इस चैप्टर में मेजरली जो पढ़ना है वो केमिकल फार्मूलाज पढ़ना है कि आप केमिकल फार्मूलाज कैसे बनाएंगे. सो केमिकल फार्मूलाज को बनाने से पहले आपको वैलेंसीज के बारे में आइडिया होना चाहिए. वैलेंसी क्या है? वैलेंसी इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट. किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम क्या बोलेंगे? वैलेंसी. सो सम कॉमन आयंस एंड देयर वैलेंसीज आर गिवन इन दिस टेबल. सो ये आपको याद होनी चाहिए. याद होंगी तभी आप कोई केमिकल फार्मूला बना पाएंगे. सो लेट्स डिस्कस सम ऑफ द आयन. One is sodium ion. Here is the one positive charge, so it means its valency is 1. The second is the potassium. Here potassium is having again one positive charge. It means again the valency of potassium is 1. Silver, it is having one positive charge. It means here the valency of silver is 1. In copper, it is 1. Magnesium, 2 positive charge, valency is 2. Calcium, 2 positive charge, valency is 2. Zinc, 2 positive, valency is 2. Similarly, iron, 2 positive, valency is 2. Copper is 2 and iron is 3. Because iron is 3 positive. So valency of iron will be what? It is 3. Next, name of the ion, again it is mentioned. They are the cations which I am discussing here. Again the hydrogen ion, H positive. So valency of hydrogen is what? It is again 1. Next is the hydride ion. So hydrogen पे अगर positive charge है, it is known as the hydrogen ion और हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन. और अगर इसमें नेगेटिव चार्ज है, इट इज़ नोन एज दी हाइड्राइड आयन. नाउ नेक्स्ट इज द क्लोराइड आयन. नाउ इट इज़ द एनायन, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल. सो क्लोराइड मीन्स इट इज़ एन एनायन. अगेन देयर इज वन नेगेटिव चार्ज, वैलेंसी इज 1. ब्रोमाइड, अगेन वन नेगेटिव चार्ज, वैलेंसी इज 1. इन आयोडाइड, वन नेगेटिव चार्ज, वैलेंसी इज 1. एंड इन ऑक्साइड, ऑक्सीजन इज हैविंग 2 negative charge. It means here the valency is 2. So valency of oxide ion is what? 2. The next is the ammonium. In case of ammonium, the ion is NH4 positive, so it means it is 1. So next an ion is basically the hydroxide, that is OH negative. So here the negative charge is only 1, it means the valency will be 1. So OH negative के केस में valency again is 1. नाइट्रेट के केस में द फॉर्मूला इज NO3 नेगेटिव. आपको ये सारे आयंस भी लर्न होने चाहिए. सो इट इज़ ए पॉलीएटॉमिक आयन. नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, इट इज़ 1 नेगेटिव. सो हियर अगेन वैलेंसी इज 1. द नेक्स्ट इज द आयोडाइड I नेगेटिव, अगेन वैलेंसी इज 1. कार्बोनेट SCO3 2 नेगेटिव, इट इज़ ए पॉलीएटॉमिक आयन, वैलेंसी इज 2. सल्फाइड, that is SO3 2 negative. Sulfate SO4 2 negative. Phosphate is PO4 3 नेगेटिव. सो मेक श्योर कि आपको ये सारे के सारे जो आपके नेम हैं, पॉलीएटॉमिक आयंस हैं, चाहे वो मोनोएटॉमिक आयंस हैं, उनके आपको नेम के साथ फॉर्मूले लर्न हो. अगर आपको लर्न होंगे तभी आप केमिकल फार्मूला बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉलीएटॉमिक आयंस लाइक अमोनियम, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, hydrogen carbonate, sulfide, sulfate and the phosphate. Phosphate is PO4 3 negative. So here valency will be what? It is 3 because 3 negative charges there. Fine. So ये आपको सब लर्न करने हैं. पॉलीएटॉमिक आयंस क्या है बेटा? पॉलीएटॉमिक आयंस वो हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा जो है एलिमेंट प्रेजेंट हो. फॉर एग्जांपल अमोनियम में 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. हाइड्रोक्साइड में भी 2 प्रेजेंट है, नाइट्रोट में भी 2 प्रेजेंट है, हाइड्रोजन कार्बन में 3 प्रेजेंट है. सो पॉलीएटॉमिक आयंस आर बेसिकली दोज आयंस जहाँ पे आपकी जो एलिमेंट्स हैं वो एक से ज़्यादा टाइप के प्रेजेंट हैं. बाकी सारे आपके मोनोएटॉमिक आयंस हैं लाइक हाइड्रोजन, हाइड्राइड, क्लोराइड, कॉपर, मैग्नीशियम एटसेट्रा. राइट. सो नेक्स्ट, if I move on to next slide, that is the writing chemical formula. Here we will learn how to write the chemical formula. First of all, there are 4 rules you have to learn or you have to see. That first of all, write the symbols.
or the formula of the elements or ions, so that the symbol of element or positive ion is on left and symbol formula of the non-metal negative ion is on the right. फाइन, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे सिंबल का या किसी एलिमेंट का या आयन का, और सिंबल इस तरीके से लिखेंगे कि जो पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन्स जो मेटल है उसको आप लेफ्ट साइड लिखेंगे, और जो नेगेटिव आयन है, नेगेटिव आयन इज ऑफ द नॉन मेटल, उसको आप राइट साइड में लिखेंगे. नेक्स्ट फिर आप क्या करेंगे, उनकी वैलेंसीज लिखेंगे एलिमेंट की. राइट द वैलेंसीज ऑफ द एलिमेंट और आयन्स बिलो द एलिमेंट्स और आयन्स. फाइन. द नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज क्रॉस ओवर द वैलेंसीज ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स. अब उन वैलेंसीज को हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे दोनों को अपोजिट टाइप में, अपोजिट साइड में. फाइन. नेक्स्ट पॉलीएटॉमिक आयंस शुड बी एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट आफ्टर बिफोर राइटिंग द फॉर्मूला. और जो पॉलीएटॉमिक आयंस हैं वो आप किस में लिखेंगे, आप ब्रैकेट्स में लिखेंगे. अगर आपका पॉलीएटॉमिक आयन का मॉलिक्यूल एक से ज़्यादा प्रेजेंट है तो, एक से ज़्यादा मतलब अगर 2 है, 3 है, 4 है, तो पॉलीएटॉमिक आयंस को आप ब्रैकेट्स में शो करेंगे. सो लेट्स अंडरस्टैंड दी writing chemical formula. So suppose it is mentioned that you have to form hydrogen chloride. So hydrogen chloride में आपको पता है कि हाइड्रोजन आएगा, नेम से ही पता लग रहा है हाइड्रोजन. अनदर इज द क्लोराइड मीन्स क्लोरीन. वी नो दैट वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट, अभी हमने ऊपर स्टडी किया वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन. सो द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1 एंड क्लोराइड आयन इज 1. तो क्रॉस मल्टीप्लाइड द आंसर विल बी HCl. सो इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको वैलेंसीज पता होंगी, तभी आप ये केमिकल फार्मूलाज बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बना सकते. नेक्स्ट इज द मैग्नीशियम क्लोराइड. सो इन मैग्नीशियम क्लोराइड द एलिमेंट इज द Mg एंड क्लोराइड इज बेसिकली द क्लोरीन. वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम इज 2, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, एंड Cl इज बेसिकली क्लोराइड आयन. फाइन. सो क्लोराइड आयन की जो वैलेंसी थी वो भी कितनी थी, 1. एंड अगेन इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई इट यू विल गेट द फॉर्मूला MgCl2. This is the formula of magnesium chloride. The next I'm going to discuss here is the carbon tetrachloride. In carbon tetrachloride, you know the element is carbon and other is the chlorine. So valency of carbon is what, it is 4, and the valency of chlorine is what, it is 1. If you cross multiply both the two valencies, then answer will be CCl4. So chemical formula of carbon tetrachloride will be what, CCl4. Next I'm gonna do is the nitric acid. So in nitric acid आपको नाइट्रिक एसिड करने से पहले पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से कैटायन आयन हैं. सो नाइट्रिक एसिड में एक तो हाइड्रोजन आयन रहता है, दूसरा नाइट्रेट आयन रहता है. देन आई एम राइटिंग दी बेसिकली now I am writing the elements or the anions here. So here hydrogen anion, hydrogen cation and nitrate anion. So hydrogen पे here charge is +1, so valency will be 1, and nitrate पे charge is -1, so valency will be 1. If you cross multiply it, the formula will be HNO3. So this is your nitric acid. Similarly, if I talk about sulfuric acid, then so formula so sulfuric acid is basically, आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से आपके कैटायन आयन्स हैं. सल्फ्यूरिक एसिड में एक तो H आयन है, दूसरा आपका सल्फेट ग्रुप है. फाइन. सो आई एम राइटिंग द हियर 2 सेपरेट ग्रुप्स. वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज +1, हियर द चार्ज, सो वैलेंसी विल बी द 1. सल्फेट के केस में आपका जो चार्ज है सल्फेट पे दैट इज़ 2-, सो हियर वैलेंसी विल बी 2. क्रॉस मल्टीप्लाई इट, सो आंसर विल बी H2SO4. Fine. Now next I'm gonna do is the hydrogen. I'm doing ammonium sulfate. Fine. I'm doing the ammonium sulfate. Name is very dangerous, it seems, because very lengthy name is that ammonium sulfate. So it might look dangerous to you or very lengthy or very difficult to you, but it is not like that. So ammonium sulfate. In ammonium sulfate, the ion is what, ammonium and sulfate SO4 2-. फाइन. सो आपको फॉर्मूला बनाना है. अब इनका आप कैसे बनाएंगे. सो अमोनियम पे चार्ज कितना है, +1, सो यहाँ वैलेंसी 1 हो जाएगी. सल्फेट पे चार्ज कितना है, -2, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी यहाँ पे आपकी 2. सो नाउ व्हेन यू क्रॉस मल्टीप्लाई इट अगेन, तो आप देखेंगे अमोनिया को आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. फाइन. तो आप एक चीज़ याद रखें कि जब भी पॉलीएटॉमिक आयन एक से ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, पॉलीएटॉमिक आयन जब एक से ज़्यादा प्रेजेंट होंगे तो आप उनको हमेशा ब्रैकेट में शो करेंगे. फॉर एग्जांपल अमोनियम आयन आपके 2 हैं, तो आप ब्रैकेट लगाएंगे 2,
एंड देन यू विल राइट सिंपल SO4. SO4 भी आपका पॉलीएटॉमिक एनायन है, लेकिन यहाँ पे इसकी कितनी क्वांटिटी है 1 और यहाँ अमोनियम की 2. द फॉर्मूला विल बी अमोनियम सल्फेट. ठीक है, अगेन आई एम रबिंग इट. Next I'm gonna discuss is the next compound, that is hydrogen carbonate. In hydrogen carbonate again, hydrogen carbonate. Again in hydrogen carbonate, the cation is the hydrogen and carbonate is CO3 2 negative. So here the valency of hydrogen is 1, the carbonate is 2. Cross multiply it. What will be the formula? The formula is H2CO3. This is hydrogen carbonate. ठीक है बेटा. Next formula I am gonna discuss is of the sodium chloride. इसका डिस्कस करूँगी मैं अभी. सोडियम क्लोराइड का डिस्कस करूँगी. तो सोडियम क्लोराइड को हम किस तरीके से लिखेंगे? तो वी नो दैट इन सोडियम क्लोराइड the sodium metal and chlorine, and the valency of sodium is 1 because Na positive and Cl negative, and the valency of chlorine is again 1. When you cross multiply it, the formula will be NaCl. तो सोडियम क्लोराइड में आपका एक सोडियम एटम है, दूसरा क्लोराइड आयन है. तो सोडियम की वैलेंसी 1 है तो 1 लिखा, क्लोराइड की वैलेंसी 1 है 1 लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फॉर्मूला क्या बना? NaCl. ये बहुत ईजी था आपका. सो ऐसे आपको बहुत सारे आ सकते हैं पूछने के लिए कंपाउंड. लाइक मैंने अमोनियम आपको कार्बोनेट भी आ सकता है. अगर आपको अमोनियम कार्बोनेट बोला जाए तो आप कैसे बनाएंगे? आप ये तभी बना सकते हैं जब आपको सब कैटायंस एंड आयंस की वैलेंसीज पता हो. अमोनियम कार्बोनेट. सो अमोनियम कार्बोनेट में अगेन योर NH4 पॉजिटिव इज द पॉलीएटॉमिक आयन and CO3 2 negative is the polyatomic ion. So valency here is 1, here valency is 2. When you cross multiply it, the answer will be NH4 again whole twice ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि आपका अमोनियम पॉलीएटॉमिक हो गया और एक से ज़्यादा प्रेजेंट है, एंड अदर इज बेसिकली ओनली 1, so it will be अमोनियम कार्बोनेट. ठीक है बेटा. अब मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का डिस्कस करती हूँ आपके सामने. आई एम राइटिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड. अगेन इन सोडियम हाइड्रोक्साइड देखो, जो सबसे पहले हम नाम लिखते हैं ना, वो हम किसका लिखेंगे? कैटायन का. जब भी फार्मूला लिखेंगे पहला हमेशा नाम कैटायन का होगा, फिर उसके बाद किसका नाम आएगा? एनायन का. फार्मूला में भी पहले किसका आएगा? कैटायन का, देन हम लिखेंगे एनायन. और यू कैन ऑल्सो राइट कैटायन की जगह आप पहले मेटल को लिखेंगे, फिर आप किसको लिखेंगे? नॉन मेटल को. यानी कि जो आपका मेटल होगा वो हमेशा कैटायन होगा, और जो नॉन मेटल जो मेटल होगा वो कैटायन बनाएगा, और जो नॉन मेटल होगा वो एनायन बनाएगा. ठीक है. सो NaCl के केस में अब what I am doing is, now in case of sodium valency is 1, chloride valency is 1. Sorry, this is not chloride, this is hydroxide. So here the OH, हाइड्रोक्साइड पे जो चार्ज है वो -1 रहता है. सो यहाँ वैलेंसी OH की 1 हो जाएगी. आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बनेगा NaOH. सो दिस इज़ द सोडियम हाइड्रोक्साइड. क्लियर है बेटा. सो ये कुछ सिंपल फार्मूलाज थे जो मैंने यहाँ पे बनाए हैं आपके सामने, सो दैट आपको प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम ना हो. ये बहुत ही इजी फार्मूलाज है. एक आपका हाइड्रोजन सल्फाइड रह गया. हाइड्रोजन सल्फाइड भी बता देती हूँ कैसे बनेगा. हाइड्रोजन सल्फाइड में अगेन द एलिमेंट इज H, एंड सल्फाइड को हम बोलते हैं H2 नेगेटिव. दिस इज सल्फाइड. फाइन. तो हाइड्रोजन सल्फाइड में जो हाइड्रोजन है इसकी वैलेंसी 1 है, एंड सल्फाइड की वैलेंसी इज बेसिकली 2. When you cross multiply it, the answer will be H2S. So here the molecular formula is H2S, which is of hydrogen sulfide. Now next slide I'm going to discuss here is the molecular mass or the formula mass unit. अब molecular mass और formula mass unit mass क्या है? The molecular mass of a substance, it is the sum of the atomic masses of all the atoms in a molecule of the substance. ठीक है ना. जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं आपके, उन सब के मास को अगर मैं ऐड कर दूं एक मॉलिक्यूल के अंदर, जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं, अगर उन एटम्स के मास को मैं ऐड कर दूं तो जो भी मास आएगा उसको हम बोलेंगे दैट इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस, एंड इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट. फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज़ बेसिकली व्हाट? मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर आपको निकालना है, तो इससे पहले आपको वाटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O.
सो एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 यूनिट है, ऑक्सीजन का 16 यूनिट, तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, आप टोटल ऐड करेंगे तो 18 यूनिट। सिमिलरली नाइट्रिक एसिड का अगर पूछा गया है तो नाइट्रिक एसिड में भी आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, तभी आप मास निकालेंगे। सो नाइट्रिक एसिड इज HNO3, हाइड्रोजन की मास 1, नाइट्रोजन 14 एंड ऑक्सीजन 16। सो टोटल मास विल बी 63 U, दैट इज़ द एटॉमिक मास यूनिट। फाइन। सो अब हम ज़रा इसके मासेस देख लेते हैं, लर्न कर लेते हैं कि किस तरीके से हमें मास आएंगे। देखिए बेटा, मैं यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूलर मासेस लिख रही हूँ। आई एम राइटिंग द सिंबल ऑफ एलिमेंट, सिंबल विद एटॉमिक नंबर Z एंड एटॉमिक मास यहाँ पे मैं लिखूँगी, ठीक है। सो फर्स्ट जो है आपका दैट इज़ हाइड्रोजन, आई एम ओनली राइटिंग द सिंबल and the atomic mass is 1. Second is helium, atomic mass is 4. Third is lithium, atomic mass is 7. 4 is your beryllium, atomic mass is 9. Then your fifth is what? It is the boron, atomic mass is 11. 6 is basically ये जो मैं 1 2 3 4 5 6 लिख रही हूँ, ये सीरियल नंबर्स नहीं है, ये एटॉमिक नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये एटॉमिक पीरियोडिक टेबल में इस नंबर पे ये जो एलिमेंट है ये रहेगा। 6 पे इज कार्बन, तो एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास इज 12। देन 7 पे इज नाइट्रोजन, एटॉमिक मास इज 14। 8 पे आपका ऑक्सीजन, एटॉमिक मास इज 16, सॉरी एटॉमिक मास इज 16। 9th पे फ्लोरीन, एटॉमिक मास इज 19। 10th पे नियॉन, एटॉमिक मास इज 20। Now 11, 1 to 20 आपको याद होने चाहिए। 11 is sodium, the atomic mass is 23. The 12 is the magnesium, atomic mass is 24. 13 पे आपका आएगा एल्यूमिनियम बेटा, एल्यूमिनियम का मोलर मास is basically 27. Now that is 14 is what? Your silicon, atomic mass is 28. 15 is phosphorus, atomic mass is 31. 16 पे आपका जाएगा सल्फर, एटॉमिक मास इज 32। 17 इज़ बेसिकली दी क्लोरीन, एटॉमिक मास इज 35.5। अब यहाँ पे मास 35.5 क्यों है, इसको हम पढ़ेंगे अभी। देन 18 इट इज़ दी आर्गन, एटॉमिक मास इज 40, एटॉमिक मास इज व्हाट, इट इज़ 40। Then 19 is basically the potassium, atomic mass is 39, and 20 is the calcium, again atomic mass is what, it is 40. So these are the atomic numbers with the atomic masses जो मैंने यहाँ पे आपको लिखे हैं। अब देखो बेटा, मैंने बोला कि मैं क्लोरीन का मास मैंने 35.5 लिखा है, मैं फिर से एक बार स्क्रॉल डाउन करके शो कर देती हूँ। नियॉन 20, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 2, फॉस्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, आर्गन 40, पोटेशियम 39 एंड कैल्शियम 40. Fine, these are the 1 to 20 elements with atomic numbers in the atomic mass. ओके बेटा, तो अगर आपको ये एटॉमिक मासेस पता होंगे तभी आप ये सारे के सारे जो एटॉमिक मासेस हैं या फॉर्मूला मास यूनिट है वो आप निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर आपको बोला जाए कि कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड यू नो दैट द मास ऑफ कार्बन इज व्हाट, दैट इज 12 एंड मास ऑफ ऑक्सीजन एटम 1 is 16 and there are 2 oxygen atoms, so you have to multiply 16 with 2. So 12 plus 16 multiply to कितना हो गया, 32। तो आप इसका आंसर क्या आएगा, 44U, दैट इज़ 44 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो दिस इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड। सो इस तरीके से आप और किसी भी मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं किसी भी कंपाउंड का जो आपको गिवन है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ इट इज़ गिवन अमोनिया NH3, तो आप कैसे निकालेंगे, नाइट्रोजन, यू नो दैट एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज़ 14 एंड हाइड्रोजन इज़ 1, but there are 3 hydrogens, so we have to multiply it with 3. Now add the numerics, it will be 17, so answer will be 17U. So atomic mass, or sorry, molecular mass of ammonia will be 17 atomic mass unit. क्लियर है? तो बेटा आज के टॉपिक में हम इतना ही करेंगे। हमने इस टॉपिक में क्या, एक तो केमिकल फार्मूलाज बनाने सीखे हैं,
दूसरा हमने मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखा है और आयंस पढ़े हैं। सो आयंस वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आयंस में जब तक उनकी वैलेंसीज नहीं पता होंगी, चाहे मोनोटॉमिक की हो या फिर पॉलीटॉमिक की हो, तब तक आप मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं बना सकते। तो आपको आयंस लर्न करने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ज़रूरी है ये दिमाग में बिठा लेना और इसे याद कर लेना। याद होंगे तो केमिकल फार्मूला झट से बन जाएगा, नहीं होंगे तो नहीं बनेगा। सिमिलरली अगर आपका एटॉमिक मासेस लर्न होंगे विद द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, तभी आपको कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला या मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं उस मॉलिक्यूलर फार्मूला का, अदरवाइज़ आप नहीं निकाल सकते। सो क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है कि राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ सच कंपाउंड एंड ऑल्सो कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट कंपाउंड। तो आप उसको उस तरीके से करेंगे। ठीक है बेटा। सो आज का इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगली वीडियो में इसका नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे।